Hello everyone, welcome to Legal Update. Today's topic for discussion is delay not always ground for rejection. Why news? Recently, the Rajasthan High Court in Arjun Lal and others versus Rameshwar Prasad and others ruled that delay rules under the CPC should not defeat substantive rights and upheld the setting aside of an ex parte decree, emphasizing the need for timely remedies but not penalizing minor procedural delays. Background of the case: the petitioners were defendants in a revenue suit who missed court hearings in April 2022 due to the illness of the petitioner's mother, resulting in an ex parte order and decree against them. The petitioners filed an application under Order 9 Rule 13 CPC to set aside the ex parte decree, but their application was delayed by 6 days beyond the limitation period. The delay was explained by the petitioners, who later filed a condonation application under Section 5 of the Limitation Act. The Board of Revenue quashed the Assistant Collector's decision, which had allowed the petitioner's application on the technical grounds, prompting the petitioners to file a writ petition in the High Court. What were the court observations? Justice Anup Kumar Dhand found that petitioner's explanation for 6 days delay due to a family member's illness satisfactory. It emphasized that minor procedural lapses like a delayed condonation application should not override substantive justice. The court emphasized that the primary purpose of rules on limitation is to ensure timely remedies, not to destroy substantive rights. It was reaffirmed that the trial courts have discretion in setting aside ex parte decree, and such discretion should not be disturbed unless exercised arbitrarily. The High Court found that the Assistant Collector had properly considered the facts and gave the petitioners a chance to be heard, and therefore the decision to set aside the ex parte decree was correct. Provision involved is Order 9 Rule 13 of the Civil Procedure Code, which allows a defendant to apply to set aside an ex parte decree if they were unable to attend the court hearing due to a sufficient cause. If the court is satisfied, it may set aside the decree and proceed with the suit. The rule provides discretionary powers to the court to balance justice and procedural fairness. It's the time for practice question. Which of the following best reflects this rule regarding the delay in filing an application to set aside an ex parte decree? Option A, delay in filing automatically results in rejection. Option B, minor delays should be overlooked if explained. Option C, the court must reject any application exceeding the limitation period. And option D, the Board of Revenue must always accept technical grounds. Pin down your answers in the comment section below. लीगल अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है देरी हमेशा अस्वीकृति का आधार नहीं होती। आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अर्जुन लाल एवं अन्य बनाम रामेश्वर प्रसाद एवं अन्य मामले में फैसला सुनाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विलंब नियमों से मूल अधिकारों को पराजित नहीं किया जाना चाहिए और एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने का समर्थन किया। समय पर उपचार की आवश्यकता पर बल दिया, लेकिन मामूली प्रक्रियात्मक देरी के लिए दंडित नहीं किया। आइए अब जानते हैं मामले की पृष्ठभूमि। याचिकाकर्ता एक राजस्व मुकदमे में प्रतिवादी थे, जो याचिकाकर्ता की मां की बीमारी के कारण अप्रैल 2022 में अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ एक पक्षी आदेश और डिक्री जारी की गई। याचिकाकर्ताओं ने एक तरफा डिग्री को रद्द करने के लिए आदेश 9 नियम 13 CPC के तहत एक आवेदन दायर किया, लेकिन उनके आवेदन को सीमा अवधि से 6 दिन की देरी हो गई। देरी के बारे में याचिकाकर्ताओं ने बताया, जिन्होंने बाद में सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत क्षमा आवेदन दायर किया। राजस्व बोर्ड ने तकनीकी आधार पर सहायक कलेक्टर के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने याचिकाकर्ताओं के आवेदन को अनुमति दे दी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। आइए अब जानते हैं न्यायालय की टिप्पणियों को। न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड ने पाया कि परिवार के एक सदस्य की बीमारी के कारण 6 दिन की देरी के लिए याचिकाकर्ताओं का स्पष्टीकरण संतोषजनक था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षमादान आवेदन में देरी जैसी छोटी मोटी प्रक्रियागत चूकों को मूल न्याय पर हावी नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस परिसीमा नियमों का प्राथमिक उद्देश्य समय पर उपचार सुनिश्चित करना है, न कि मूल अधिकारों का हनन करना। इस बात पर जोर दिया गया कि निचली अदालतों को एक पक्षी आदेशों को रद्द करने का विवेकाधिकार है और इस विवेकाधिकार का तब तक उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसका मनमाना प्रयोग न किया जाए। उच्च न्यायालय ने पाया कि सहायक कलेक्टर ने तथ्यों पर उचित रूप से विचार किया था और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया था, इसलिए एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने का निर्णय सही था। आइए अब जानते हैं शामिल प्रावधानों को।
आदेश 9 नियम 13 सीपीसी। आदेश 9 नियम 13 सीपीसी किसी प्रतिवादी को एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है यदि वे पर्याप्त कारण जैसे बीमारी के कारण अदालत की सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ थे। यदि न्यायालय संतुष्ट हो तो वह डिक्री को रद्द कर सकता है और मुकदमे को आगे बढ़ा सकता है। यह नियम न्यायालय को न्याय और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाने के लिए विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने में देरी के संबंध में इस फैसले को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? विकल्प ए, दाखिल करने में देरी से स्वतः ही अस्वीकृति हो जाती है। विकल्प बी, यदि स्पष्टीकरण दिया जाए तो छोटी मोटी देरी को नजरअंदाज कर देना चाहिए। विकल्प सी, न्यायालय को सीमा अवधि से अधिक के किसी भी आवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए। विकल्प डी, राजस्व बोर्ड को हमेशा तकनीकी आधार को स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।